بلیٹن کے آغاز میں ذکر وزیر اعظم شہباز شریف کا جو کہتے ہیں کہ مکالمہ جمہوری عمل کا حصہ ہے، اسی کی بدولت جمہوریت مستحکم ہوتی ہے۔ ایک ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ایک میز پر بیٹھ کر اتفاق رائے سے سیاسی اور آئینی پیش رفت ممکن ہوتی ہے، تاہم سیاستدانوں کے روپ میں انتشار پسند اور جلاؤ گھیراؤ کرنے والے مکالمے کے اہل نہیں ہیں۔ ایسے عناصر ریاست کی علامتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ایسے عناصر کی متشدد کارروائیوں کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ترقی یافتہ جمہوریتوں میں بھی ایسے عناصر کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق کوئی بھی ادارہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا۔ آئین نے پارلیمنٹ کی کوکھ سے ہی جنم لیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں عدلیہ کے ساتھ تصادم نہ ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پروسیجر ایکٹ میں چیف جسٹس کے اختیارات کو وسعت دی گئی ہے۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ میں ان کا جو بیس جو ہے وہ وائڈن کیا جا سکے، انصاف جو ہے اس کی شفافیت جو ہے بڑھائی جا سکے۔ اس طرح نہیں کہ ون مین شو ہو، وہاں بھی آمریت کی جو ہے وہ شائبہ ہو، یا آمریت کا کوئی سلسلہ وہاں بھی کنٹینیو کیا جائے، ان کی روایات جو ہیں ان کو مسمار کیا جائے، لیکن اس کو بھی روک دیا گیا۔ اب یہ کیا جائے؟ ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس جو ہے ان کی عزت کرے، عدلیہ کی عزت کرے، لیکن جناب والا جب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے یا پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی، ہمارا جو ٹرائیکاٹمی کا پرنسپل ہے کانسٹیٹیوشن میں، کانسٹیٹیوشن کی جو اساس ہے، جو بنیاد ہے ٹرائیکاٹمی، اس میں کوئی بھی ادارہ دوسرے کسی ادارے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، اور وہ ایپلیکیبل ہے عدلیہ کے اوپر بھی۔ وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے، وہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے۔ وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراضات اٹھا دیے۔ حکومت نے موقف اپنایا ہے کہ ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے اعتراض پر خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جائے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب آڈیو لیک کا مقدمہ نہ سنیں۔ تینوں معزز ججز 5 رکنی لارجر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیں۔ وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کیس میں متفرق درخواست جمع کروا دی۔ آڈیو لیک کمیشن کے خلاف سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دینے کی استدعا۔ وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ 26 مئی کو سماعت کے دوران چیف جسٹس پر اٹھائے گئے اعتراض کو پذیرائی نہیں دی گئی۔ انکوائری کمیشن کے سامنے ایک آڈیو چیف جسٹس کی خوش دامن سے متعلق ہے۔ عدالتی فیصلوں اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جج اپنے رشتہ دار کا مقدمہ نہیں سن سکتا۔ ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے اعتراض پر خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا۔ مبینہ آڈیو لیک جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب سے بھی متعلق ہے۔ سپریم کورٹ میں آڈیو لیکس کمیشن کیس کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ کیس سماعت کرے گا۔ اور اب ذکر آئی جی پنجاب عثمان انور کا، جو کہتے ہیں کہ جیلوں میں خواتین کے ساتھ نازیبا سلوک کی باتیں بے بنیاد اور من گھڑت ہیں، جھوٹی اور ماضی کی ٹویٹس شیئر کی جا رہی ہیں۔ عوام اپنے اداروں پر اعتماد رکھیں۔ وہ لاہور میں دیگر پولیس افسران کے ہمراہ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو بنایا جا رہا ہے، اپنے ملک کی انسلٹ کی جا رہی ہے، اینڈ دیٹس وائی آئی ایم ایڈریسنگ دس کوشچن۔ اور میں بار بار انگریزی زبان میں بھی اس پہ سے جواب دے رہا ہوں، بیکاز دیر آر فارنرز لیونگ ان دس کنٹری اینڈ دیر آر پاکستانیز ہو آر لیونگ ابراڈ، جن کو یہ پتہ چلنا ضروری ہے، who must know that we are following all the instructions and all the laws of this country۔ ہمیں جواب دینا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ان جھوٹوں کا جواب دینا آپ کے سچے میڈیا کے ذریعے ضروری ہے۔ اٹ از ٹائم فار دا پولیس ڈپارٹمنٹ، فار دا جیلز اینڈ ایوری بڈی ایلس ٹو اسٹینڈ اپ۔ ڈپٹی کمشنر صاحبہ خود تشریف لے کے گئی ہیں اور ان لوگوں سے ملی ہیں۔ ہم اس وجہ سے جواب دے رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی نیشنل میڈیا کو اوورٹیک کرنے کی جھوٹ کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں، اور اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ خدا را پاکستان کے اندر پاکستانی شہری اور پاکستان سے باہر، خدا را اپنی ریاست اور اپنے اداروں پر اعتماد کیجئے۔ یقین کیجئے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں۔ یہاں پہ لیڈی پولیس آفیسرز کے علاوہ کسی نے کسی کو انٹیروگیٹ نہیں کیا۔
जिन्ना हाउस वाक़े का मामला है। इमरान खान ने JIT की तहकीकात में शमूलियत के लिए बाज़ाब्ता तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। खतरात की मौजूदगी में गैर ज़रूरी नकलो हरकत के बजाय सवालनामे या ज़मान पाक से बज़रिया वीडियो लिंक तहकीकात में शमूलियत मुनासिब रहेगी। इमरान खान की जानिब से ये जवाब दिया गया। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद है। लियाकत, आगाह कीजिएगा, जवाब में क्या कहा इमरान खान ने? बिल्कुल, जिन्ना हाउस वाक़या पर बनाई जाने वाली JIT के सामने आज चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को 4 बजे पेश होना था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। अलबत्ता उनके नामजद करदा नुमाइंदे जो है वो तहरीरी बयान लेकर JIT के सामने पहुंचे, लेकिन JIT ने इमरान खान का तहरीरी जवाब कबूल करने से इनकार कर दिया। अलबत्ता तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की जानिब से जो तहरीरी जवाब अपने वकला के जरिए भिजवाया था वो मीडिया को जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है कि जो JIT है उसके हवाले से उन्हें उससे मुकम्मल तौर पर तावन करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए ये मुनासिब रहेगा कि या तो JIT जो है वो ज़मान पार आकर सवालात के जवाब ले ले, या फिर वीडियो लिंक के जरिए जो है वो इस हवाले से जो उसको मालूमात दरकार है वो वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड कर ले। इमरान खान का कहना है कि उनको जो उनकी जान को खतरात हैं और इसके बावजूद वो अदालतों में पेश हो रहे हैं और हर तरह का वो तावन करने के लिए तैयार है। माजी में भी JIT ने ज़मान पाक के आकर उनका एक बयान रिकॉर्ड किया था, तो अब भी उन्होंने यही तजवीज़ दी है कि अगर JIT उनका बयान रिकॉर्ड करना चाहती है तो इसके लिए वीडियो लिंक या सवालनामे के जरिए तहकीकात में शमूलियत की जाए। और अब सूरत हाल ये है कि आज इमरान खान JIT के सामने पेश नहीं हुए। ये तहरीरी बयान जो है वो लेकर वकला पहुंचे थे, लेकिन JIT ने ये तहरीरी बयान भी लेने से इनकार कर दिया, जो बाद मीडिया ने मीडिया को शुक्रिया लियाकत अंसारी, आपने अपडेट किया। और मजीद कौन कौन PTI छोड़ गए हैं वो आपको बताते हैं। खानेवाल से तहरीक इंसाफ के साबिक MPA इमरान परवेज ने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 9 मई के वाक़यात हमारे लिए किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। पाक फ़ौज हमारा एक मुनज़्ज़म इदारा है, हमें तनसीबात का एहतराम करना चाहिए था। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। वो मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। मुल्क की सियासत अब इस नहज पर पहुँच गई है कि इस सियासत से सबसे पहले तो अपनी पार्टी से हमने रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया है। हम पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हैं। मुल्की हालात जो नए डेवलप हुए हैं, मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ मसाइल पैदा होते रहे, लेकिन अब फौरी तौर पर जो इशू आया वो पाक फ़ौज की इंस्टॉलेशंस पर हमलों का था, जो कि किसी भी सूरत में हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज एक डिसिप्लिन इदारा भी कह सकते हैं। हमें उन तनसीबात का एहतराम करना चाहिए था, हमें ये नहीं करना चाहिए था। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार कहते हैं कि मईशत स्विच ऑन ऑफ करके ठीक नहीं होगी, वक्त लगेगा। ब्लेम गेम में नहीं पड़ना, मुल्क आगे लेकर जाना है। मजीद कहा कि गुज़श्ता हुकूमत के IMF मुआहिदे की वजह से हमारे हाथ बंधे हुए हैं। वो FBR में तकरीब से खिताब कर रहे थे। कंस्ट्रेंट्स हैं उसको सामने रख के पाकिस्तान का बजट तैयार किया जाए, और यही मेरे साथी जो बैठे हैं यहाँ, टीम सारी बैठी है आपके साथ, इनका पूरा फोकस यही है कि हम जितनी फैसिलिटेशन या जितनी आपको सपोर्ट कर सकते हैं हम करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर मज़ीद बोझ ना डाला जाए। और उसकी जो हमारी कुछ कज़गन है या हमारे जो कह लें कि हाथ बंधे हुए हैं, वो एक 2019 का एक मुआहदा भी है, और वो मुआहदा IMF के पिछली हुकूमत ने किया था। अगेन जब हम पाकिस्तानी होकर बात करते हैं और पाकिस्तान वर्सेस दूसरी दुनिया के साथ किसी का भी बात करते हैं, तो उस वक्त फिर ये नहीं होता कि कौन था उस वक्त, हम थे या कोई और था, वो फिर पाकिस्तान की कमिटमेंट्स बन जाती है। इसीलिए हमने पूरी कोशिश की कि मुश्किल तरीन फैसले जो कि पोलिटिकली किसी भी हुकूमत को सूट नहीं करते थे, और जो पिछली हुकूमत जाते जाते ना सिर्फ अपने कंडीशन जो एग्री अमल नहीं किया बल्कि रिवर्स कर दिया, जो कुछ थोड़ा बहुत काम किया, उससे पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी और साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। महसूलात में इजाफे के लिए कंपनीज के ज़खायर पर टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। रिफॉर्म्स एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी ने सिफारिशात वज़ीर ख़जाना को पेश कर दी हैं। टैक्सेस का निफाज कंपनीज के ज़खायर के हिसाब से करने की तजवीज़ दी गई है, और लिस्टेड कंपनीज पर 5% और नॉन लिस्टेड कंपनीज पर 7.5% की तजवीज़ है। कंपनीज के ज़खायर 6,400 अरब रुपए हैं। कमेटी की जानिब से ये सिफारिशात की गई हैं। 5% टैक्स के निफाज से 320 अरब रुपए टैक्स वसूली का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर शहरियार मौजूद हैं। शहरियार, बताइएगा क्या आदाद शुमार हैं आपके पास?
एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमेटी ने वजारत ख़जाना को तजवीज़ दी है कि कंपनीज़ के ज़खायर जो बैंकों में मौजूद हैं उन पर टैक्स लगा दिया जाए। जो लिस्टेड कंपनी हैं या रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं उन पर 5% और जो कि नॉन फाइलर्स कंपनी हैं, गैर रजिस्टर्ड कंपनीज़ हैं, उन पर 7% तक टैक्स लगाया जाए। अगर हुकूमत 5% के हिसाब से इन पर टैक्स लगाती है तो हुकूमत को तकरीबन 320 अरब रुपए के टैक्स वसूल होंगे। लेकिन अगर हुकूमत गुज़िश्ता 3 सालों के जो कि 1400 अरब रुपए के टैक्स ज़खायर बनते हैं, एक ये तजवीज़ भी है, साथ में उन पर टैक्स लगाती है तो तकरीबन हुकूमत को 7 अरब रुपए तक मिलेंगे। इसका एक फ़ायदा तो ये है कि जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं वो टैक्स से बचने के लिए स्टॉक मार्केट में अपने डिविडेंड्स का ऐलान करेंगे, जिससे स्टॉक मार्केट में एक सरगर्मी देखने में आई। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि FPCCI, KCCI और दीगर जो तमाम ट्रेड बॉडीज़ हैं वो हुकूमत से हमेशा ये शिकवा करती रही हैं कि आप हमेशा ड्यूल टैक्सेस अप्लाई करते हैं। हुकूमत अगर ये टैक्स लगाती है तो उसका यकीनन एक रद्द-ए-अमल बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से देखा जाएगा। वज़ारत ख़जाना की आउटलुक रिपोर्ट जारी। रवा माली साल जुलाई से अप्रैल तक तरसीलात ज़र में 13% कमी हुई है। तरसीलात ज़र का हजम 22.7 अरब डॉलर रहा है। गुज़श्ता माली साल तरसीलात ज़र का हजम 26.1 अरब डॉलर था। मुदस्सिर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, आपके पास क्या दादोशुमार हैं इससे मुतल्लिक? वज़ारत ख़जाना की जानिब से जो इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि रवां माली साल के दौरान अभी तक जो मुआशी इशारिये हैं वो उनमें गिरावट नज़र आ रही है। जैसा कि वज़ारत ख़जाना की जानिब से रिपोर्ट जारी की गई है उसमें बताया गया है कि बैरूनी सरमायाकारी में 23% की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह बरामदात में 13% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह जो दीगर मुआशी टारगेट्स हैं वो भी रवां माली साल के दौरान अहदाफ मुकम्मल होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। रवां माली साल के दौरान जो मुआशी इशारिये हैं उसमें बताया गया है कि बरामदात अभी तक वो 13% से ज़ायद कमी के साथ 23 अरब डॉलर की रिकॉर्ड की गई हैं। लेकिन इसके साथ ही जो दरामदात है, दरामदात में भी 23% की कमी रिकॉर्ड की गई है और दरामदात गुज़श्ता साल की निस्बत 23% कमी के बाद 45 अरब डॉलर की रिकॉर्ड की गई हैं। बैरूनी जो सरमायाकारी है उसमें बहुत बड़ी गिरावट नज़र आ रही है, 23% से ज़्यादा की गिरावट नज़र आ रही है और बैरूनी सरमायाकारी मजमूई तौर पर सिर्फ और सिर्फ 1 अरब डॉलर तक महदूद रह गई है। रवां माली साल एक मुआशी इशारिया है करंट अकाउंट खसारा, जिसमें खासी बेहतरी नज़र आ रही है और करंट अकाउंट खसारा में 75% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता माली साल जो करंट अकाउंट खसारा तकरीबन 16 से 17 अरब डॉलर पर पहुँच गया था, रवां माली साल के दौरान उसको कंट्रोल किया गया है और रवां माली साल अभी तक जो करंट अकाउंट खसारा है वो 3 अरब 30 करोड़ डॉलर तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह FBR के जो रेवेन्यू अहदाफ हैं उसमें भी ग्रोथ नज़र आ रही है और जो तरसीलात ज़र है, तरसीलात ज़र में भी वज़ारत ख़जाना की रिपोर्ट में बताया गया है कि 13% से ज़ायद की कमी रिकॉर्ड की गई है। गुज़श्ता माली साल जब इसी अरसे के दौरान 26 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र रिकॉर्ड की गई थी, रवां माली साल तरसीलात ज़र कमी के बाद तकरीबन 22 अरब डॉलर से ज़्यादा की रह गई है। इसके अलावा भी जो दीगर रह गई हैं। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब आपको बताएं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। अब तक करप्शन केसेस में कितनी रिकवरीज हुई, कमेटी ने चेयरमैन नैब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन नैब कहाँ हैं? इजलास में क्यों नहीं आए? कौमी असम्बली की अकाउंट्स कमेटी चेयरमैन नैब की राह तकती रह गई। कमेटी अरकान नैब चेयरमैन की अदम हाजिरी पर बरहम। PAC ने करप्शन केसेस में रिकवरीज में नैब की कारकर्दगी गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। चेयरमैन कमेटी नूर आलम खान नैब हुकाम पर बरस पड़े। पूछा, चेयरमैन कहाँ हैं? हमारी कमेटी ने 1 खरब के करीब रिकवरीज की। आप लोगों ने अब तक कितनी रिकवरीज की हैं? हमारी तनख्वाह 1,67,000 है, जबकि नैब वालों की 20 लाख है। अगर यहाँ पे कोई भी होगा और नहीं आया हो तो बिल्कुल मैं मालूमात कर लूंगा। आपको मैं निकाल लूंगा ना, एयरलाइंस होती हैं ना, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे भाई। अगर किसी ने झूठ बोला होगा तो मुझे पता चल जाएगा। लेट्स मी चेक। चेयरमैन नूर आलम ने कहा कि करप्ट नहीं हूँ, आपने जो करना है कर लें, मैं किसी से नहीं डरता। मेंबर कमेटी रोहित असगर बोले, कानूनी जंग के लिए कई अरबों लगा दिए गए। कमेटी ने आइंदा हफ्ते चेयरमैन नैब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। PAC ने पिम्स और पॉली क्लिनिक के रिटायर्ड डॉक्टर नर्सेज को ग्रेड 19 के मुसावी पेंशन अदा करने की हिदायत कर दी। कमेटी ने डॉक्टर नर्सेज की रेगुलर प्रमोशन की हिदायत भी की। कराची समेत सिंध भर के नौजवानों के लिए फ्री गवाना सिंध IT प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान कर दिया गया। गवाना सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी कहते हैं कि नौजवान IT के शोबे में जदीद महारत हासिल करके बेहतरीन रोजगार हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। कराची से मोहम्मद अली हफीज की रिपोर्ट देखिए। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी ने कर दिया बड़ा ऐलान।
कराची समेत सिंध भर के नौजवानों को गवर्नर हाउस में फ्री IT कोर्सेज करवाए जाएंगे। IT की जदीद तालीम देने के लिए बैरून मुल्क से IT माहिरीन को मदऊ किया जाएगा। गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टसोरी का कहना है कि IT की जदीद तरबियत का बुनियादी मकसद नौजवानों को इस काबिल बनाना है कि इन्हें बेहतरीन रोजगार मैसर आ सके। ये कोर्स गवर्नर हाउस में मुफ्त होंगे। 5 लाख से जायद लोग, हो सकता है 1 मिलियन भी हो जाए, उनके पहले IQ टेस्ट होंगे, सिलेबस जो होगा उसके टेस्ट होंगे, उसके बाद वो सिलेक्ट होंगे और फिर वो गवर्नर हाउस में आकर एयर कंडीशन मार्की में ये कोर्सेज करेंगे। फ्री गवर्नर सिंध IT प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए पहले governorsindh.com वेबसाइट पर इंदराज करवाना होगा। फिर उम्मीदवार एंट्री टेस्ट देंगे। कामयाब उम्मीदवारों को IT के जदीद कोर्स करवाए जाएंगे। IT माहिर डॉक्टर जिया का कहना है कि IT प्रोग्राम में शरीक बच्चों को सोने के चम्मच से खिलाया जाएगा, लेकिन शेर की निगाह से देखा जाएगा क्योंकि यहाँ सख्त डिसिप्लिन होगा। गवर्नर सिंध के मुताबिक फ्री IT प्रोग्राम में 5 लाख बच्चों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी और एंट्री टेस्ट में कामयाब होने वाले 50,000 बच्चों को पहले फेज में IT प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाएगा, जबकि दूसरे फेज में मजीद 50,000 बच्चे IT प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। गवर्नर सिंध का कहना है कि इस प्रोग्राम के लिए 1 रुपया भी सरकारी फंड से इस्तेमाल नहीं होगा। पहले मरहले में सिंध और बाद में तमाम सूबों में IT प्रोग्राम करवाने के लिए वहाँ के गवर्नर साहिबान से बात की जाएगी। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में आप देख सकेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। देखते रहिए दुनिया न्यूज़।